السلام علیکم۔ میری 14 سالہ خوبصورت سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ میں جسے بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ نکلی۔ میری بیوی ہسپتال میں داخل تھی، اسی لیے میری ساس رات کو میری سالی کو میرے پاس چھوڑ کر ہاسپٹل میری بیوی کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلا لیا تاکہ وہ کہیں نئے گھر میں ڈر نہ جائے، لیکن اس نے تو آدھی رات کو میرے ساتھ ہی بیڈ پر رات کے 1 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ میری سالی نور ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی اور وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تو شاید اسے رات کے اس پہر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ سی نائٹی پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ایاز بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا میں رات آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو نور ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی کلی کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظر چڑھائی اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکیہ رکھ کر دے دیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت نور ایک 8 سال کی بچی تھی۔ میرا اپنے سسرال بہت ہی کم جانا ہوتا تھا، اسی لیے میں نور کو ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو پوری قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور نور صوفے پر بے چین لیٹی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک سامان سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے نور کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نور کہنے لگی کہ ایاز بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طرح سے لیٹ نہیں پا رہی۔ نور کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر لیٹ جاؤں گا۔ نور جیسے ہی بیڈ پر آئی تو میں اپنا تکیہ لے کر اٹھنے لگا، لیکن نور نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی کہ ایاز بھائی، آپ کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ یہیں بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے نور کے جسم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے نور کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے میں ایک کم عمر بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری شراب ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا، لیکن میں بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر نور نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور صنوبر کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے اور ان 6 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب صنوبر نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور صنوبر کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو صنوبر کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میری شادی نہیں کریں گی، لیکن میں صنوبر کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن ہی نہیں تھا۔ صنوبر کے بغیر تو ایک پل بھی گزارنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی محبت میں ساری حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی ماں کو بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئیں اور میں نے صنوبر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میرے ماں باپ کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میری کوئی کمائی تھی
और जब सनोबर के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के ख़िलाफ़ हो गए। और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सनोबर के घर वालों को राज़ी किया, लेकिन सनोबर के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया था। काफ़ी अरसे तक मैं और सनोबर फाकों वाली ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सनोबर ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था और इसीलिए मैं सनोबर के घर न जाने के बराबर जाता था, साल में 1 या 2 दफ़ा। इसीलिए मैंने सनोबर की छोटी बहन नूर को कभी सही से देखा भी नहीं था, ना ही मैं उस बात से वाकिफ़ था कि वो अब 14 बरस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज़्यादा इलाज करवाने के बाद अब सनोबर हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे सनोबर की माँ को बुलवाना पड़ा। और जब हम सनोबर को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि सनोबर को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसे में सनोबर को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसलिए उसका केस काफ़ी मुश्किल था। सनोबर के वालिद कई शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सनोबर की वालदा ने उसकी छोटी बहन को हमारे पास हमारे घर में छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसे बाद सनोबर की बहन नूर को पहली दफ़ा देख रहा था और मैं उसको देखकर हैरान रह गया। मैं तो सनोबर की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर मैं सनोबर को भूल गया था। नूर ने सनोबर की गैर मौजूदगी में घर के सारे कामकाज बहुत जिम्मेदारी से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सनोबर घर में नहीं है। उसने सारे घर को सलीके से साफ़ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं जान गया कि नूर आई है। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि नूर तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफ़े पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूँ। मैंने नूर से कहा कि अच्छा किया जो तुम चली आई, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन नूर को यूं नीम बरहना नाइटी में देखकर मेरी नज़रें बार बार उसके जिस्म का तवाफ़ कर रही थीं। नूर मेरे चेहरे पर नज़र जमाए बहुत ही तवज्जो से मुझसे बात कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता रही थी कि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो मैं पहली ही नज़र में उसे बहुत अच्छा लगा था। इस वक्त वो सिर्फ़ 8 साल की थी। वो कहने लगी कि मुझे देखते ही उसे अपनी आपी की पसंद पर रश्क आने लगा। उसे खुशी हुई कि उसकी आपी की किस्मत इतनी अच्छी है। नूर कहने लगी कि उस दिन के बाद से मैं इसके ख़यालों में बैठ गया था और वो यही तसव्वुर करती है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला शख्स भी बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। नूर मुंह से बात करते करते अपनी नाइटी की डोरी ढीली कर रही थी। वो मुझे कह रही थी कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें उसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई थी। वो कहने लगी कि उसने कई मरतबा अपने अब्बा से मेरे लिए झगड़ा भी किया, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके अब्बा मुझे माफ़ करके हमें अपना लें, क्योंकि वो मुझे दोबारा देखना चाहती थी। वो मेरे लिए बेचैन थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफ़े पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से उसे नज़रें छुड़ाकर अपने फ़ोन में ध्यान लगाने लगा। कमरे का माहौल अचानक ही बहुत गर्म हो गया था। नूर एक जलती हुई आग थी जो मुझे अंदर तक दहका रही थी। मैं तो उसे एक बच्ची समझ रहा था, लेकिन उसकी जवानी तो किसी को भी दीवाना कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक कर नूर के वजूद पर जा रहा था और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ। वो कहने लगी कि ये सोफ़ा बहुत ज़्यादा गैर आरामदेह है और मैं इस पर आराम से नहीं सो सकती। ये सुनते ही मैंने उसे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफ़े पर मैं सो जाऊँगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। नूर ने फ़ौरन ही मेरा हाथ पकड़ कहा कि अयाज भाई, आपको तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत है, ये आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाएं।
मैं नूर की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सनोबर के पीछे मैंने अस्पताल में काफ़ी भाग दौड़ की थी, इसीलिए मैं बैठ के एक कोने पर होकर लेट गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। नूर की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था, जिससे मैं इस वक्त गुजर रहा था। फ़ोन चलाते चलाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता न चला, और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नूर मेरे करीब लेटी हुई है। उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मेरे अंदर एक तूफ़ान सा उठने लगा था। नूर जानबूझकर मेरे जज्बात को उभार रही थी। वो अपने दिली जज्बातों को बातों बातों में पहले ही बयान कर चुकी थी कि वो मुझे पसंद करती है। मावरा अपराध के अंधेरे में वो इस तरह मेरे करीब आकर ये बात साबित कर रही थी कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को नूर से दूर न रख सका, और मैं भी करवट बदल कर उसके करीब हो गया। नूर तो जैसे इसी इंतज़ार में थी। जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फ़ौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगी, और मैंने भी उसके हर जज्बे की खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके तो नूर ने अपने फ़ोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीर खींची, जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। हम दोनों ही बेहिजाब थे। मैंने नूर से कहा कि इस तरह की तस्वीर फ़ोन में ना ले, लेकिन नूर कहने लगी कि इस तस्वीर को देखकर अपने बीते हुए पलों को याद करेगी। मैं उसकी इस अदा पर फिदा हो गया था। वो पूरी तरह अपनी जवानी मुझ पर लुटा चुकी थी। उसका नर्म नाज़ुक गुलाब जैसा खिलता बदन मुझे मदहोश कर गया था, और मैं ये तब भूल गया था कि मेरी महबूब बीबी इस वक्त तकलीफ़ की हालत में अस्पताल में दाखिल है, और वो कभी भी मेरी बच्ची को जन्म दे सकती है। नूर के साथ रात गुजार कर जैसे ही कोई किला फतह कर लिया हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज़ होने वाला था। जैसे ही मैं अस्पताल जाने के लिए निकलने लगा, नूर ने मुझे आवाज़ देकर रोका और मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगी कि अब जाते जाते मुझे कुछ पैसे दे जाएं, मैंने बाज़ार जाना है। नूर की बात सुनते ही मैंने बटुए से हज़ार के 10 नोट निकाल कर नूर के हवाले किए। मेरे हाथों से लेकर उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने बदले में उसके होंठों को चूम लिया और घर से निकल पड़ा। मैं सारा रास्ता खुशी से सरशार। जब अस्पताल पहुंचा तो मेरी बीवी सनोबर की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने बताया कि सनोबर ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कुछ भी हो सकता है। सनोबर की माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। सारा दिन मैं सनोबर के साथ रहा, लेकिन सनोबर की हालत पहले से बेहतर न हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सनोबर को अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सनोबर जितने दिन अस्पताल में रहती, मुझे नूर के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा, और रात के वक्त मैं सनोबर की अम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया कि नूर घर पर अकेली होगी, मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में सनोबर के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाज़त थी। इसीलिए सनोबर की अम्मी का रहना बहुत ज़रूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो नूर बहुत खुश थी। उसने बहुत सारी ख़रीदारी की थी, और वो मुझे एक एक करके सारे कपड़े पहनकर दिखा रही थी। उसे मुझसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वो बहुत आराम से मेरे सामने बिना किसी दुपट्टे के बेझिझक घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस कदर फिट थे कि सब कुछ वाज़िया नज़र आ रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं सनोबर आपी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैंने नूर से कहा कि इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की तो अलमारी है। उसने कहा कि चाबी दें फिर मुझे। मैंने उसे चाबी दे दी और वो सनोबर की अलमारी खोलकर एक एक चीज़ देखने लगी, और सनोबर जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती थी वो निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीली रंग की नाइटी पर हाथ रखा और उसे कहा कि ये सनोबर पर बहुत जचती है,
ये सुनते ही नूर वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफ़ी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सनोबर की नाइटी पहने उससे भी कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज़्यादा जच रही है या आप ही पर ज़्यादा जचती है। ये सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में भरा और बहुत मोहब्बत से उसे कहा कि ये तुम्हारे दूधिया बदन पर बहुत खूबसूरत लग रही है। सनोबर तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती, तुम लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और ख़ुद उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। उसे इस नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है, लेकिन नूर तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। उसका पूरा बदन बहुत हसीन था और मैं हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात उस पर अपने जज्बात लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया है। ये सुनकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक सनोबर की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं सनोबर को संभालते हुए घर ले आया। सनोबर को देखकर नूर का चेहरा उतर गया था। उसने एक अजीब सी नज़र सनोबर पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने सनोबर को कमरे में लाकर लिटा दिया। उसकी अम्मी ने मुझे सनोबर की दवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया। मैं सनोबर की अम्मी के साथ बाहर लाउंज में बैठा उनकी बात सुन रहा था कि जब मैंने नूर को सनोबर के पास जाते हुए देखा मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि नूर ऐसी कोई बात सनोबर के आगे नहीं कहेगी। थोड़ी देर में नूर वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी कि चलिए अम्मी, अब हम घर चलते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चले गए। मैंने नूर को आखिरी बार अलविदाई नज़रों से देखा क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। नूर को जाता देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने सनोबर से कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई तो हमें अल्लाह दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरी बात सुनकर सनोबर ने मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखा और कहने लगी कि जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं। सनोबर के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं उसके आगे ही बैठ गया और उसे कहने लगा कि ऐसी बात क्यों कर रही हो। सनोबर कहने लगी कि नूर मेरी सगी बहन नहीं बल्कि वो मेरी फूफो की बेटी है, जिसे फूफो के इंतकाल के बाद आपा हमारे घर ले आए थे। लेकिन नूर को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी क्योंकि घर में हर चीज़ मेरी थी और उसे हर वो चीज़ चाहिए होती जो मेरे पास होती। आपा ने कभी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस न होने दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझसे हसद में मुब्तला रही। उसकी हर नज़र उस चीज़ पर होती जो आपा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आना जाना नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी वह तुम पर अपनी नज़रें नहीं जमाएगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे हसद में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। सनोबर की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि नूर ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियोस दिखा दी हैं और सारी तस्वीर भी दिखाई हैं जिनमें हम दोनों एक साथ थे। सनोबर की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। नूर ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों खिलौना बन गया था। सनोबर की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शौहर भी। मैं सनोबर के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि सनोबर ने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी नीली नाइटी मांग कर ले गई है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा उसके बदन पर जचती हुई अच्छी लगती है। मुझे लगा था जैसे सनोबर के लफ्ज़ों ने मुझे ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया हो। वक्त जज्बात के हाथों में अपनी पूरी ज़िंदगी हार गया था और अब कभी सनोबर के आगे नज़र उठाकर नहीं ज़िंदगी गुजार सकता था। नूर ने कुछ ही वक्त बाद मुझे ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे ना देने पर मेरी तस्वीर वायरल करने की धमकी देती।
میں جسے 14 سال کی ایک سیدھی سادی معصوم بچی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل ایک فتنہ تھی جس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میرا اور صنوبر کا تعلق مردہ ہو گیا تھا، کیونکہ صنوبر اب مجھے صرف اور صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وقتی لذت اور مزے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔